Hello dear students, welcome to our YouTube channel. In this video, we'll solve one sample paper and this is paper number 1 which is released by the CBSE for the session 2021-22. So it is MCQ based. So maximum marks are 40 and the time allowed is 90 minutes. So some instructions are there. So this paper is prepared by the team of teachers at My CBSE Guide. And it contains 40 questions including MCQ, case study and assertion and reasoning. So third is My CBSE Guide, questions 1 to 30 are based on multiple choice questions and 31 to 35 are based on assertion and reasoning questions. Then 36 to 40 number questions are based on case study based questions. So let's start from the first question. So the first question is the LCM of 24, 60 and 150. So for finding the LCM, we have this long division method. So it is going with 2. So 12 to the, so 30 and here it is 75. Again with 2. So 6, 15 and then 75 only. Again with 2 it is going. So 3, 15 and 75. So with 3 it is going 1 and 5 and then 25. Then with 5 it is okay, then again with 5. So you can see what is LCM. 5 5s are 25, 3s are 75, 2s are 150, 2s are 300, 2s are 600. So 600 is the LCM. So the next question is, if the line given by 3x plus 2ky is equal to 2 and 2x plus 5y plus 1 is equal to 0 are parallel, then the value of k is what? So for parallel lines, you know, A1 over A2 is equal to B1 over B2 does not equal to C1 over C2 is the condition. So let's fill here. A1 is 3, A2 is 2 is equal to B1 over B2 is 2k over 5 is come. So we have to solve this much only. So it becomes 2 2s are 4. So cross multiply करेंगे तो 4k and is equal to 15. So k is 15 over 4 answer will come, right? So C option is correct here. So the third question is, in the given figure ABO, this is ABO triangle similar to triangle DCO. So these two triangles are similar and CD is 2 centimeter. So यहाँ पे भी मैं बना लूँ इसको. So this way, okay. So here CD is 2 centimeter, AB is 3 centimeter, OC is 3.2 centimeter. Right, OD is 2.4, then here which are true. So if these two triangles are similar, then by CPST the sides will be in the same ratio. तो sides के ratio हम same लेंगे. तो देखिए अगर मैं AB लिया तो इसका side आ जाएगी CD, and if I take the side of this as OB तो इसकी side आ जाएगी OC, and here if I take the side as AO then it will come OD here. So sorry, it is here. So AB is 3, CD हमारे पास 2 है, OB अभी हमें फाइंड आउट करना है, एंड OC is 3.2 and AO is to be found out. Then we have OD is 2.4. ठीक है, तो यहाँ से हम OB निकाल देंगे. तो देखिए 2OB is equal to this is into 3, so 9.6. So OB will be 4.8 आ जाएगा बच्चों. ठीक है, OB 4.8 आ गया. अब इन दोनों को कंपेयर कर लो तो AO भी आ जाएगा. सो फ्रॉम हेयर AO over 2.4 is equal to 3 over 2. इन दोनों को कंपेयर कर दो, इक्वल कर दो. सो 2AO is equal to this into 3, 7.2. सो AO is 3.6 आ जाएगा डिवाइड करके. OB 4.8 and AO 3.6. So this is C option is correct here, you can see. So the fourth question is, the pair of equations x is equal to 2 and y is equal to minus 3 has these options. So let's draw these. देखिए x is equal to 2. This is a line parallel to y axis at a distance of 2 units. याद रखना. So y axis के parallel 2 units पे, ये देखो यहाँ पे ये line है x is equal to 2. ठीक है, and y is equal to minus 3 is a line parallel to x axis at a distance minus 3 units from origin. तो नीचे की तरफ minus 3 units. तो this is your y is equal to minus 3. So these are cutting at this point minus 2 comma
सॉरी 2 कॉमा -3 पे ये कट करेंगी, ठीक है। तो हेयर नो सोल्यूशन, वन सोल्यूशन, येस इट इज़ वन सोल्यूशन हेयर, दैट सोल्यूशन इज 2 कॉमा -3, ठीक है। सो द फिफ्थ क्वेश्चन, इफ cos alpha plus beta is 0 then sin alpha minus beta is what? So let's find out. So cos alpha plus beta is a 0. You know 0 where cos is 0? Cos is 0 at 90 degree. So it means मैं 0 की जगह 90 लिख रहा हूँ. So here alpha plus beta हमारे पास आ जाएगा 90, right? So from here you can find out alpha is equal to 90 minus beta. So यहाँ पर आप भर दो sin अल्फा की जगह भर दो 90 माइनस बीटा एंड माइनस बीटा इज अगेन देयर. सो लेट्स सी व्हाट इज द वैल्यू. 90 माइनस 2 बीटा एंड यू शुड नो 90 माइनस थीटा इज cos थीटा. सो cos 2 बीटा विल बी द आंसर. सो सी ऑप्शन इज करेक्ट हेयर. द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 1600 and HCF is 5. What is LCM? You should know that LCM into HCF is equal to product of the numbers. राइट हमारे पास ये फॉर्मूला है. सो यहाँ पे HCF 5 है तो LCM आ जाएगा 1600 ओवर HCF. HCF इज 5. सो 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 320 LCM आ जाएगा जी. सो दिस इज डी ऑप्शन करेक्ट. नेक्स्ट इज सेवंथ क्वेश्चन. इफ अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल दिस देन फाइंड 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा. सो दिस इज हाउ टू डू. सी हेयर एक्स स्क्वेयर प्लस 6x प्लस 2. हमारे पास ये पॉलिनोमियल है, इसकी जीरोज हैं अल्फा एंड बीटा. सो आप एक काम करो, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा निकाल लो. अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी ओवर ए. सो माइनस दिस इज बी, दिस इज ए इज 1 हेयर. सो माइनस बी ओवर ए इज -6. सो अल्फा इंटू बीटा होता है सी ओवर ए. सी इज 2 एंड ए इज 1. सो 2 ओवर 1 आ जाएगा. सो नाउ वी हैव टू फाइंड आउट दिस वैल्यू. सो 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा. सो टेक एलसीएम. अल्फा इंटू बीटा इज एलसीएम. सो यहाँ पे बीटा आ जाएगा, यहाँ पे अल्फा आ जाएगा. सो अल्फा प्लस बीटा इज हेयर -6 एंड अल्फा इंटू बीटा इज 2. तो कटिंग करेंगे तो -3 आंसर आ जाएगा आपका. सो ए ऑप्शन इज करेक्ट हेयर. सो द 8th क्वेश्चन इज द पार्ट ऑफ अ सर्कुलर रीजन एनक्लोज्ड बाय अ कॉर्ड एंड द कोरस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड. ओके सी हेयर, ये है आपकी कॉर्ड, ये कॉर्ड है एंड ये आर्क है. इनके बीच के इस एरिया को बोलते हैं सेगमेंट. क्या बोलते हैं? सेगमेंट. So A option is correct here. So 9th question is a quadratic polynomial whose zeros are -3 and 6 is what? So देखिए अगर दो जीरोस दी हैं तो सबसे पहले हम इनका सम निकाल लेंगे. जीरोस का सम निकाल लेंगे, फिर प्रोडक्ट निकाल लेंगे. तो अगर हम सम निकाल लेंगे तो ये 3 आ जाएगा. प्रोडक्ट निकाल लेंगे इनका तो -18 आ जाएगा. तो हमारे पास पॉलिनोमियल का फॉर्मूला है x² माइनस sx प्लस p. s इज सम एंड p इज प्रोडक्ट. So x square minus 3x plus p plus -18 is -18. So x square minus 3x minus 18 is x square minus 3x minus 18. So I suppose here this is also not, this is also not, this is also not. So this may be, so सबको हम 6 से डिवाइड करके देखते हैं ना. सबको 6 से डिवाइड कर दो. इसको भी कर दिया, इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो x/2 आएगा ना. तो x/2 आ गया. इसको 6 से करेंगे तो 1/3 आएगा. तो मेरे ख्याल से 6 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, नॉट 1/3. सो x square over 6 minus x/2 minus 3. दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. सी हियर, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट. सो द 10th क्वेश्चन इज कमिंग नाउ. सो 10th इज इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC. दिस इज इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC. AD इज परपेंडिकुलर टू BC. ये परपेंडिकुलर है. सो AD स्क्वायर इज इक्वल टू P इंटू BC स्क्वायर. ठीक है, हमें P की वैल्यू फाइंड करनी है. ओके, सो लेट्स सी. अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो हम ऐसे करते हैं, इनकी साइड्स अज्यूम कर लेते हैं. 2A साइड्स ले लेते हैं. तो ये 2A बन जाएगी, 2A बन जाएगी. इक्विलेटरल है ना, तो ये भी 2A बन जाएगी. तो हमें पता है कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द ऑल्टीट्यूड इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल बाइसेक्ट द बेस. तो ये 2A है तो ये AA बन जाएगा. ठीक है, अब पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे यहाँ पर. तो लगाइए. तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर. सो देखिए AB स्क्वायर इज 2A का होल स्क्वायर, दैट इज 4A स्क्वायर बन जाएगा. BD इज A स्क्वायर बन जाएगा प्लस AD बन जाएगा आपका AD स्क्वायर ओनली. तो यहाँ पे ले आएंगे तो 3A स्क्वायर बन जाएगा AD स्क्वायर, राइट. सो हेयर 3 इंटू, नाउ A को मैं क्या भर सकता हूँ? A इज BC ओवर 2 है ना, BC का हाफ है ये.
तो BC over 2 का स्क्वायर बन जाएगा, राइट। सो फ्रॉम हेयर यू कैन सी 3, ये 4 बन जाएगा एंड BC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर। सो यहाँ से आप देख सकते हो AD स्क्वायर इज इक्वल टू 3/4 BC स्क्वायर, सो 3/4 आंसर आ जाएगा हमारे पास। So 3/4, B option is correct here. So 11th question is the probability of selecting a queen of diamond when a card is drawn from well shuffled pack of 52 cards. So देखो 52 कार्ड्स में जो क्वीन है वो 4 होती हैं, पर डायमंड की तो एक ही होगी, ठीक है। तो 1/52 आएगा इसका आंसर, ए करेक्ट आंसर। सो HCF ऑफ 72 एंड 120 इज 24, फाइंड द LCM। देखिए हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा है कि प्रोडक्ट ऑफ द नंबर इज इक्वल टू LCM इंटू HCF। तो LCM इंटू HCF इज 24 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स आर 72 एंड 120, ठीक है। सो LCM हमारे पास आ जाएगा 72 इंटू 120 ओवर 24 आई थिंक 5 जा, ठीक है। तो 72 5 जा 360 आ जाएगा जी। D option is correct. So the 13th question, if a line meet the circle in 2 distinct point is called। देखिए अगर एक लाइन सर्कल को 2 पॉइंट्स पे मीट करे तो इसको हम बोलते हैं सीकेंट। याद रखो इसे क्या बोलते हैं, सीकेंट बोलते हैं इसको। तो C option is correct here. 14th is if the perimeter of a circle is equal to the that of a square, then the ratio of their areas is what? So here perimeter of the circle का perimeter कितना होता है 2πr इज इक्वल टू द दैट ऑफ द स्क्वायर। तो स्क्वायर के अपने स्क्वायर के पेरीमीटर के बराबर है, तो स्क्वायर का पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड, ठीक है, दैट इज 4 इंटू साइड। सो यहाँ से आप साइड निकाल सकते हो, साइड ऑफ द स्क्वायर इज 2πr ओवर 4 दैट इज πr ओवर 2। अब हमें क्या निकालना है, इन दो चीज़ों के एरियाज का रेशो। तो एरिया ऑफ सर्कल ओवर एरिया ऑफ स्क्वायर वी हैव टू फाइंड आउट, ठीक है। सो πr स्क्वायर ओवर साइड कितनी है यहाँ पर, πr ओवर 2 है ना, πr ओवर 2 का स्क्वायर, ये निकालना है हमें। तो ये बन जाएगा πr स्क्वायर ओवर पाई स्क्वायर r स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4 वो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। ये कट के पाई से पाई कट के 4 ओवर पाई आ जाएगा, 4:π विल बी कमिंग हेयर, ठीक है। सो ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट इज two isosceles triangles have equal angles and their areas are in the ratio 16:25. Then what is the ratio of their corresponding heights? तो देखिए अगर दो isosceles triangle के angles equal हैं तो वो similar होंगे आपस में, because अगर 2 angles और 3 angles of 2 triangles are equal then these are similar। अगर ये दो triangles सिमिलर होगी तो उनके एरियाज का जो रेशियो है दैट इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट्स, ओके। सो इट मीन्स दिस विल बी एरिया, दिस इज एरिया, और ये किसके बराबर होगा, ये होगा एरिया बराबर हाइट्स के स्क्वायर के बराबर। सो हाइट ये आ जाएंगी, है ना। सो दिस इज 4/5, तो हाइट्स विल बी 4 and 5, राइट, बिकॉज एरिया होगा, एरिया जो है वो हाइट्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। तो ये किसका स्क्वायर है 4 का, ये किसका स्क्वायर है 5 का, तो 4/5 मीन्स हाइट्स का रेशियो आ गया 4:5। दिस इज सी ऑप्शन इज करेक्ट हियर। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16th। सो 16th क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ cos थीटा cos 90 माइनस थीटा ओवर cot 90 माइनस थीटा। तो देखिए cos थीटा cos 90 माइनस थीटा इज sin थीटा ओवर cot 90 माइनस थीटा इज tan थीटा, राइट। सो आपको ये भी पता है कि tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा ओवर cos थीटा होता है, ठीक है। sin कट cos इंटू cos इज cos स्क्वायर थीटा। बी ऑप्शन इज करेक्ट हेयर। सो द 17th क्वेश्चन कमिंग नाउ। 5 years hence the age of a man shall be 3 times the age of his son। सो एक काम करते हैं, प्रेजेंट एजेस अज्यूम कर लेते हैं, मैन की प्रेजेंट एज x मान लो, सन की प्रेजेंट एज y मान लो ईयर्स में, ठीक है। वी आर डूइंग हेयर MCQ, सो सॉल्विंग रफली लाइक, ओके। सो अब क्या बोलता है 5 years हैंस, तो मैन की तो आ गई x+5 और सन की आ गई y+5। तो बोलता है एज ऑफ मैन शैल बी 3 times द एज ऑफ द सन। तो मैन एज इज इक्वल टू 3 times द एज ऑफ सन। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। सो इसको थोड़ा सॉल्व करें तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई 15 - 5 10। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। अब आगे क्या बोलता है, एंड
वाइल 5 years अर्लियर, 5 साल पहले, तो चलो पहले 5 साल पहले की एजेस निकालते हैं। ये मैन की होगी, ये सन की होगी। 5 years अर्लियर क्या था, मैन वो 7 times एज ओल्ड एज हिज सन, तो मैन इज इक्वल टू 7 times। तो यहाँ से आप सेकेंड इक्वेशन निकाल सकते हो। सो दिस बिकम्स x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30। ठीक है, सो सॉल्व करके ये आ जाएगा। अब इन दोनों को सॉल्व कर लो। हमें क्या पूछा है, प्रेजेंट एज ऑफ मैन। तो चलिए यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट कर दें, माइनस प्लस प्लस कट, ये बन गया 4y इज इक्वल टू 20। सो y इज इक्वल टू 20/5, 4 इज 5। तो y तो आ गया 5 मीन्स एज ऑफ सन इज़ 5। सो अब हम क्या करेंगे, सन की एज कहीं पे भी भर देंगे। चलो यहाँ भर देते हैं y को 5। तो x माइनस 15 इज इक्वल टू 10, तो x 25 आ जाएगा आपका। ठीक है, तो सॉरी कोई गलती होगी हमसे, यस सॉरी इट इज़ मिस्टेक हेयर। सो दिस इज सी 4y इज इक्वल टू 10 प्लस 30 इज 40 है ना। सो y इज़ 10, y 10 आना है। ठीक है, अब y को 10 यहाँ भरते हैं। चलिए, तो x माइनस 10 3 ज़ा 30 ओके इज इक्वल टू 10, सो x इज इक्वल टू 40 आ जाएगा। सॉरी इट वॉज मिस्टेक। सो 40 इज द आंसर। सो लेट्स सी द 18th क्वेश्चन। सो कार्ड्स ईच मार्क्ड विद वन ऑफ द नंबर 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 तक लिखे गए हैं कार्ड्स पे नाम। सो आर प्लेस्ड इन अ बॉक्स एंड मिक्सड थॉरोली। वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कार्ड विद नंबर लेस देन 10? तो देखिए, सबसे पहले ये टोटल कार्ड्स कितने हैं। सो यहाँ पे टोटल कार्ड 10 है, आप काउंट कर लो, ये 10 कार्ड्स होंगे। ठीक है, क्योंकि 1 to 5 मिसिंग है 15 में से, तो 15 से 5 कार्ड मिस हैं, तो 10 ही बचे हैं ना। तो उसमें से 10 से कम कितने हैं, 6 7 8 9 10, 5 कार्ड्स आर लेस देन 10 है ना। सॉरी 6 7 8 9 दीज आर 4 ओनली, 4 कार्ड्स आर लेस देन 10, तो 4। सो 2/5 आ जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी, 2/5 right? So first option is correct here. So 19th question is, if HCF A and B is 12 and product of A B is 18, then 1800, then find LCM. So third time this question we are doing in the same paper. So the formula is LCM into HCF is equal to product of the numbers. यहाँ पे नंबर हैं हमारे A and B, ठीक है, these are the numbers. So it is given that प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स इज 1800। सो ये तो 1800 डायरेक्टली दिया है। एलसीएम हमें निकालना है, एचसीएफ इज 12। सो एलसीएम कैसे आएगा, 1800 को 12 से डिवाइड कर दो। सो 12 1 ज़ा 12 5 ज़ा 150 विल बी द आंसर। 19th question. So now this is the 20th question coming. So in the given figure ABCD is a trapezium. So this is a trapezium. AB 40 है, this is 40, this is BC 15. Okay, CD is 28. कहाँ गया CD? CD this is 20, sorry, CD 28 and CE is perpendicular, ये 90 का है, हमें इसका एरिया निकालना है। तो you should know that what is the area of the trapezium, that is half into sum of parallel sides. What are sum of parallel sides here? 40 plus 28. And what is height? height हमें फाइंड करनी है भाई, ठीक है। तो हम देखो कैसे फाइंड करेंगे हाइट। तो ये तो बन गई रेक्टेंगल, ठीक है, तो ये 28 है तो ये भी 28 होगा, तो पूरा तो ये 40 है तो ये 12 बचा, 12 बचा। ओके, अब पाइथागोरस थ्योरम से हम ये CE निकाल लेंगे। CE स्क्वायर क्या आएगा, ये आएगा 15 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर। तो 15 स्क्वायर तो होता है 225, 14 स्क्वायर 144। सो अगर माइनस करेंगे तो हमारे पास 81 आएगा, तो CE स्क्वायर इज 81, CE 9 आ जाएगा बच्चों। तो यहाँ पे हाइट 9 आ गई, ठीक है। तो चलिए जी कि देखते हैं क्या आंसर आता है। 68 इंटू 9, सो 34 आ गया। 306 आ रहा है, देखते हैं 306 है इसमें ऑप्शन की नहीं। Yes, this is 306. Okay, so dear students, today in this part we will do only 20 questions and rest questions in the next video. You write in the chat box if you need the more questions and other part also, next part also, then please write in the chat box and I will be making the next video also, and on other papers also I will be making the videos. Thank you so much. Don't forget to subscribe the channel. Thank you.